Yes, good morning to all of you today. Welcome to your mathematics class. Today we are just going to start our chapter number 4, that is the principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction. Okay, what is the method of principle, how to solve a question by using the principle of a mathematical induction? Actually it is a process. It is a process to prove a statement. Which kind of statement? There is Pn is a statement where the n is a natural number. Pn is a statement of a natural number n that is given, and this is a process in which firstly you have to prove the P1 is true. Firstly you have to prove that P1 is true, or we can say that the Pn is true for n equal to 1. जब आप स्टेटमेंट में n को 1 रखें तो आपकी स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जानी चाहिए. दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. इन शॉर्ट हम इसको PMI भी बोल देते हैं. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. व्हाट इज द सेकंड स्टेप? वेयर यू हैव टू PK इज ट्रू. यू हैव टू अज्यूम दैट दिस इज अवर अजम्पशन स्टेप. आपको अज्यूम करना होता है कि PK इज ट्रू. ओके, थर्ड स्टेप टू प्रूव PK प्लस 1 इज ट्रू. और ये आपको शो करके दिखाना पड़ता है कि आपका जब n को आपने K प्लस 1 रखा तो आपकी वो स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई. दीज 3 स्टेप्स इंक्लूड इन द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल induction, and I am just taking one example, one question related to the to solve it. Okay, related to this question. I am taking one question from the exercise, that is the second question. Using the principle of mathematical induction, prove that n belongs to natural number. Okay, the first statement is 1 square plus 2 square plus 3 square plus 10 square is equal to n into 2n plus 1 n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Okay. Firstly we consider it as a Pn. This is the statement with the natural number n. We write it as Pn. Okay. This is the statement consider as Pn. Okay, this is your second question. Okay, first step by using the principle, firstly prove for n equal to 1. This is our first step. आपको n रखने का मतलब होता है, it means you have to take only first step of the left hand side. क्लियर है? अगर n को 2 रखना है तो इसका मतलब फर्स्ट 2 स्टेप. n को 3 का मीन्स होता है फर्स्ट 3 स्टेप. n को 4 रखने का मतलब फर्स्ट 4 स्टेप फॉर द लेफ्ट हैंड साइड. अगर मैं n को 1 ले रही हूँ, इट मीन्स योर लेफ्ट हैंड साइड हैव ओनली 1 स्केयर, and for right hand side you have to put the value of n. Okay, so left hand side is 1 and right hand side में आपके पास क्या है? That is n into n plus 1 2n plus 1 by 6. आपको तो as it is कर देंगे. n की जगह आपने 1 रखा, 1 plus 1 2 into 1 plus 1 by 6. Okay, so you have to solve 1 into 2 into 3 by 6, that is 1. So as you can see that the left hand side is equal to right hand side, so P1 is true here. आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो गया तो Pn is true, P1 is true, और we can say that the Pn is true. आप कोई भी वर्डिंग यूज कर सकते हैं for n equal to 1. आपका n equal to 1 के लिए आपके लेफ्ट हैंड साइड वाली ये स्टेटमेंट जो है वो इक्वल टू हो गई है. सेकंड स्टेप क्या होता है? आपको n को क्या रखना होता है? k, और वो आप अज्यूम करते हैं, we assume that Pk is true. Pk is true कि आपको आपने n को k रख दिया तो आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है. आपने जस्ट कुछ नहीं करना, जहाँ भी n है वहाँ k पुट करना है.
के मीन्स आपने फर्स्ट से लेकर के तक के स्टेप लेने हैं, दैट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाय 6। ओके, मैंने कुछ नहीं किया, जहाँ n था मैंने आई हैव पुट हियर k, दैट k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाय 6। सो हमने ये मान लिया कि दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू द दिस वन। Okay, we don't need to prove it. Now come to the third step where we prove that we have to prove that pk plus 1 is also true. आपको ये लिखना नहीं है, आपको ये शो करके दिखाना है। तो फर्स्टली मैं सिर्फ राइट कर रही हूँ, जहाँ n है वहाँ k plus 1 राइट कर रहे हैं, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से आपके ये सोन चलता हुआ यहाँ कहाँ तक गया, k प्लस 1 स्क्वायर तक। मैंने n की जगह k प्लस 1 पुट कर दिया, राइट हैंड साइड में पुट कीजिए k प्लस 1 प्लस 1 इट मीन्स k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 बाय 6। आप राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, यू विल हैव हियर k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 by 6. Okay, so this is your right hand side. How you will prove it? As you can see that this is a series from 1 square to लेकर k plus 1 square. Okay, 1 square के बाद जैसे हमारे पास quite obvious है, हमारे पास 2 square ही आएगा, तो इससे पहले क्या आएगा, रेस्ट ऑफ द टर्म्स। अगर k प्लस 1 से पहले का स्टेप क्या होगा, दैट इज k स्क्वायर। अगर आप में एक का ही डिफरेंस है तो इससे पहले 1 का डिफरेंस लेकर k स्क्वायर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम बाय द स्टार इक्वेशन। ओके, बाय यूजिंग स्टार, जिसको हमने मान लिया था कि वो हमारा इक्वल है, वो हमारा ट्रू है, उसी को यूज करते हुए हम यहाँ पुट कर देंगे। वहाँ पर बाय स्टार इक्वेशन में 1 से लेकर k स्क्वायर का सम किसके इक्वल था, दैट इज इक्वल टू k इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6। तो आपने इसकी जगह वही पुट करना है। बाय स्टार हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम आया k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाय 6, और लास्ट टर्म क्या बची हमारे पास, दैट इज k प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, सो आप देखो हमें ये लाना है राइट हैंड साइड में, तभी हमारा ये लेफ्ट और राइट इक्वल होगा, हमारी स्टेटमेंट प्रूव होगी k प्लस 1 के लिए। तो आप देखो इसमें से और इसमें से कोशिश यही करनी है आपको कि आपका जितना कॉमन फैक्टर आ सके आप उसको कॉमन लीजिए। आपका इसमें और इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, दैट इज k प्लस 1। यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम्स है, सो यू हैव टू टेक द k प्लस 1 कॉमन। क्या रह गया यहाँ पर, एक k रह गया और ये रह गया, k इंटू 2k प्लस 1 बाय 6 रह गया, और वहाँ रह गया k प्लस 1। सो अब इसको सोल्व करना है आपको सोल्व करने के लिए मैं ऊपर से रब कर दी हूँ। ओके, अब यहाँ से हमने ये चीज़ को आगे कंटिन्यू किया, k प्लस 1 लिखा मैंने, साथ में एलसीएम लो, देन यू हैव 2k स्क्वायर प्लस k बाय 6, एलसीएम लेने पर वो भी प्लस 6k प्लस 6 बाय 6। On solving this you have 2k square 1k plus 6k, that is 7k plus 6 by 6. This is a quadratic equation. You can make the factor of it. After making the factor of this you will have 2k square 6 to the 12. How you will get the 12? p 4s are plus 6 by 6. Okay, k plus 1, when you make the factor of this you will have the 2k k plus 2, and the second is the 2k plus 3, and divide by there is a 6, so 6, because all the terms are in multiply, so we can use whole 6, whole divided by 6. As you can see there is no difference between left hand side and right hand side. We are just solving the left hand side. I leave here the right hand side. अब मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही सोल्व की, सोल्व करते करते एज में सॉल्यूशन हमारा जो आया वो दैट इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। सो वी कैन राइट दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू, Pn इज ट्रू for n equal to k plus 1,
अगर मैंने n इक्वल टू के को इक्वल माना था, एज्यूम किया था कि ये इक्वल है, तो मैंने k+1 के लिए इक्वल शो करके दिखा दिया कि हाँ इक्वल है। तो अगर मैं n को k लिख रही हूँ, अज्यूम कर लिया, ठीक है, वो भी ठीक है। p को n को 1 रखा तो भी हमारा इक्वल आया। n को k हमने अज्यूम करके चले, लेकिन k+1 के लिए भी हमारा सेम आया था। इट मीन्स मैं n को कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर लूँ, हमारा pn क्या आएगा, pn इज ट्रू। हमारी वो स्टेटमेंट ट्रू आएगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल, कैपिटल N मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप n को 1 रखेंगे तो भी ट्रू आएगा, 2 रखेंगे तो भी ट्रू आएगा, 3 रखेंगे तो भी ट्रू आएगा। चाहे कोई भी नेचुरल नंबर रख के देखें, आपकी लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी। सो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है 3 स्टेप में। ये 3 स्टेप हर एक क्वेश्चन में रिपीट होंगे। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। Okay, I am taking one more question related to this. I am taking the question number 5. Okay, question number 5, there is 4 plus 8 plus 12 plus dot 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 4n is there, and in the right hand side you have 2n into n plus 1. You have to do it for n equal to for all natural number. Okay, so this is our pn. First step, in n equal to 1, n equal to 1 means for the left hand side it means first term, so the left hand side there is only 4, and the for right hand side आपने यहाँ पे ये हमारी राइट हैंड साइड, आपने क्या करना है, n को 1 पुट करना है, दैट इज 2 into 1 and 1 plus 1, that is 2 into 2, that is equal to 4. Now you can see that the left hand side is equal to right hand side, so P1 is true. Second step, n को आप क्या assume करते हो, n को k पुट करते हो. We assume that pk is true. मैंने n की जगह k पुट कर दिया और मैं ये मान रही हूँ कि ये ट्रू है. इट मीन्स आपने क्या करना है, जहाँ भी n है वहाँ k पुट करना है. स्टार्टिंग हमारी 4 से है, तो 4 plus 8 plus 12 plus नो डिफरेंस, एज इट इज लिखना है, बस n की जगह जहाँ भी है वहाँ k लिखना. दैट इज 4k इज इक्वल टू 2k इंटू k प्लस 1. सो थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, n को क्या पुट करते हैं, k प्लस 1. आप क्या लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू. कि अब आप n को अगर k प्लस 1 रखेंगे तो वो ट्रू आएगी, ऐसा आपने प्रूव करना है. सो जहाँ भी n है वहाँ पर आप k प्लस 1 रखेंगे. अब 4 प्लस 8 प्लस 12 डॉट डॉट डॉट. अब यहाँ 4n है तो 4n की जगह क्या रखा मैंने, k प्लस 1 इक्वल यहाँ भी रखेंगे तो 2 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1. यहाँ n की जगह k प्लस 1, यहाँ भी k प्लस 1 प्लस 1. ओके, सो दिस इज योर राइट हैंड साइड जो आपको अभी प्रूव करके दिखानी है. दैट आपको जो भी लेफ्ट हैंड साइड है सोल्व करके इसके इक्वल आना है. दिस इज योर राइट हैंड साइड. एज यू कैन सी दे आर द मल्टीपल ऑफ 4. ओके, 4 आपने ये देखा, ये क्या बन रहा है, दैट इज 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3. इस टर्म ना 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 सो ऑन करते हैं 4 इंटू k प्लस 1. इससे पहले का क्या स्टेप होगा, वो यही होगा 4 इंटू k. आपको ये लिखना है, क्लियर है. और बाय स्टार 4 से लेकर 4k तक का सम हमारे इसके इक्वल था, तो वही सेम चीज़ यहाँ आ रही है. 4 से लेकर 4k तक का जो सम है वो बाय स्टार इक्वेशन, उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड क्या है कि इसका सम किसके इक्वल था बाय स्टार में, दैट इज 2k इंटू k प्लस 1. और हमारे पास बची हुई टर्म क्या है, दैट इज 4 इंटू k प्लस 1. बट आपको इसके इक्वल आना है. तो मैंने पहले भी बोला है कि जब भी हम कुछ रखते हैं हम कोशिश करते हैं कि कुछ कॉमन फैक्टर अगर है तो कॉमन ले लें. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, k प्लस 1 और 2 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, k प्लस 1 भी कॉमन है. मैंने कॉमन ले लिया. यहाँ क्या रह गया, k और यहाँ रह गया 2. दिस इज योर राइट हैंड साइड. देयर इज नो डिफरेंस, बोथ आर इक्वल. सो स्टेटमेंट pk प्लस 1 इज ट्रू. तो आपकी pn इज ट्रू. आपने देखा कि 1 के लिए भी ट्रू आया, k के लिए अज्यूम किया तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू आया. तो k तो कुछ भी हो सकता था. तो आपका pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर. आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें उसके लिए स्टेटमेंट ट्रू आएगी. तो अगर मैं कोई जनरल के लिए लेके चल रही हूँ उसके लिए भी ट्रू आ रही है, तो हमारे सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू आ रही है.
क्लियर है? यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। Okay, I am taking question number 8. What is the statement of it? 1 by 1 into 3. That is into, not decimal is there. This is, ये decimal नहीं है, ये multiplication का symbol है. Then 1 by 3 into 5 plus 1 by 5 into 7 plus dot 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 1 by 2n minus 1 into 2n plus 1 is equal to n by n plus 2n plus 1. ओके, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाना है, तो वही पहले फर्स्ट n को 1 रखते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप n को 1 लेने का मतलब मैंने पहले ही बताया था, लेफ्ट हैंड साइड में n को 1 रखने का मतलब होता है आपकी फर्स्ट टर्म 1 into 1 into 3 दैट इज 1 into 3 दैट इज 3 1 by 3, और राइट हैंड साइड में आपको डायरेक्ट पुट करना होता है। देन यू हैव टू पुट n1 2 into 1 plus 1 that is 1 by 3. As you can see that both are equal, so statement is true. P1 is true here. Left hand और right hand equal आ गए तो P1 true हो गया। Come to the second step. यहाँ पर आपको n को k रखना है और वो ही लाइन लिखनी है। Assume that pk is true. ओके, pk ट्रू है तो आपने n को यहाँ पे k रखना है। सो k देन 1 into 3 से हमारी स्टार्टिंग हो रही है, 3 into 5 है। सेकंड स्टेप में एज इट इज करना होता है, बस n की जगह हमें क्या करना होता है, k पुट करना है। इट्स बिकम 2k minus 1 2k plus 1 और इक्वल में क्या आ रहा है, k by 2k plus 1। क्लियर है? थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं, n को क्या पुट करना है, k plus 1 और वही लिखना है, we shall prove that, we have to prove that pk plus 1 is true। और आप इसको स्टार इक्वेशन मान के आए हैं, हमेशा इसी को यूज करेंगे। ठीक है, आप n को जगह क्या रख दो, k plus 1, जहाँ भी n है वहीं k plus 1 1 into 3 3 into 5 5 into 7 डॉट 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 डॉट। लास्ट में अगर मैं यहाँ n को k plus 1 रखूँगी तो 2 into k plus 1 2k plus 2 2k plus 2 minus 1 तो इस बिकम 2k plus 1। यहाँ रखूँगी तो 2 into k plus 1 2k plus 2 plus 1 2k plus 3 और इक्वल में क्या है हमारे पास, k plus 1 डिवाइड में वही 2k plus 2, यहाँ k plus 1 रखेंगे तो 2k plus 2 plus 1 इट्स बिकम 2k plus 3। ये आपको राइट हैंड साइड आपको लानी है। एज यू कैन सी दैट हर एक में 2 का डिफरेंस है, 3 5 5 7 और 3 से अगर मैं इसको रिलेट कर रही हूँ तो 2 कम हो रहे हैं, 5 से ये 2 कम हो रहे हैं, मतलब फर्स्ट स्टेप आगे वाले स्टेप से 2 कम का है। तो अब मैं अगर इससे पहले का स्टेप लिखना चाह रही हूँ तो इससे पहले वाला 2 कम करोगे, इसमें से 2 माइनस करोगे तो यू विल हैव 2k minus 1 और इसमें से 2 माइनस करोगे तो यू विल हैव 2k plus 1। ओके, और आप अगर नहीं समझ आ रहा तो वही वाला स्टेप आता है जो आपका सेकंड स्टेप में लास्ट स्टेप होता है लेफ्ट हैंड साइड का, वही चीज़ यहाँ लिखनी है ताकि आपकी स्टार इक्वेशन पूरी हो सके कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू, बाय स्टार इक्वेशन आप इसकी जगह लिख सकते हो कि दैट देयर सम इज इक्वल टू k by 2k plus 1 और एक लास्ट स्टेप आपका रह जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 by 2k plus 1 एंड 2k plus 3। एलसीएम लेने से बेटर है कि मैं पहले ये देखूँ इनमें कॉमन क्या आ रहा है। आप देखोगे डिनोमिनेटर में ये टर्म सेम है दोनों, तो मैं 1 by 2k plus 1 को एज इट इज कॉमन ले रही हूँ। यहाँ क्या रह गया, दैट इज k और डिवाइड में कुछ नहीं 1 प्लस यहाँ क्या रह गया 1 by दिस 2k plus 3। नाउ टेक द एलसीएम। आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या था, 1 by 2k plus 1 तो था ही और वो साथ में एलसीएम लेने के बाद आपका बना 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 और नीचे हमारे पास है 2k plus 3। जब आप इसके फैक्टर करेंगे देन यू विल हैव हियर 2k plus 1 इज आउटसाइड इन डिनोमिनेटर पार्ट, ऊपर वाले के फैक्टर करेंगे तो आपको एक मिलेगा 2k plus 1
और एक बनेगा k प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 2k प्लस 3। सेम टर्म में कैंसिल हो जाएंगे। यू विल हैव k प्लस 1 बाय 2k प्लस 3 विच इज योर राइट हैंड साइड। सेम थी, कोई डिफरेंस नहीं है, वही आपको प्रूव करना था, वही चीज़ आ गई। तो आपकी वही है p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। सो आवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यू हैव टू ट्राई 1 to 8 क्वेश्चन in the same way. Okay, thank you.